Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Forward Public School e-learning class 9 subject maths unit 6 exercise 6.3 part 1. Here I am your maths teacher Amreen Qureshi. Now students, open your books at page 169. Here is exercise 6.3. Question number 1, find the square root by factorization. Means our first topic is square root by factorization. So let's start. Square root by factorization. In this method, make the expression a perfect square, then find the square root. Here is example number 20 at page 165. Find the square root of x square plus ax plus 1 by 4 a square by factorization. We are given an expression, or we are going to find the square root. This is the symbol of square root. We are find the square root of this. द एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन, यहाँ आप देख सकते हैं द फर्स्ट टर्म आपके पास है एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मीन वी कैन राइट एक्स रेज टू द पावर होल स्क्वायर. Here we have another term, third term, 1 by 4 a square. 1 by 4 is the square of 1 by 2, so we can write 1 by 2 a whole square. और यहाँ मिडल में आ जाएगा प्लस 2 इंटू a मीन फर्स्ट टर्म एंड इंटू b मीन सेकेंड टर्म, यानी a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर becomes the formula of a plus b whole square. Here the value of a is x, while the place of b we have 1 by 2a, so it becomes x plus 1 by 2a whole square. As we are going to find the square root of this one, so the square root of given expression is equals to plus minus x plus 1 by 2a. I hope students आपको ये clear हो गया होगा. Similarly, we can solve question number 1 with all its part. Now students, this is question number 1 of exercise 6.3. Find the square root by factorization, and here is the first part of the question, x square plus 4x plus 4. So let's start solution. After writing the solutions, सबसे पहले actually we are going to find the square root of given expression, x square 4x plus 4. So you must use the symbol of square root. ठीक है. अब now the expression is x square plus 4x plus 4 is equals to, we can write a square, ये इसको a square लिखेंगे, plus 2a into b, और plus b. At the place of b we have 4, so we can write 2 whole square. अब यहाँ जैसे कि मैंने ये स्पेस छोड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे ये सेकेंड टर्म. लेकिन इसको चेक करेंगे तो देखें 2 2 4 मीन्स कि दिस इज़ द फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर. सो x प्लस 2 होल स्क्वायर. देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ x square plus 4x plus 4 is plus minus x plus 2, and this is the answer. Is it clear? Similarly students, here we are given second part of the question, x plus y whole square plus 6 into x plus y plus 9. After writing the solution, first we have to write the question, means कि we are going to find the square root of x plus y whole square plus 6 into x plus y plus 9. Now the given expression is x plus y whole square plus 6 into x plus y प्लस 9 इज इक्वल्स टू. तो ये जो फर्स्ट टर्म है ऑलरेडी आपके पास गिवन फॉर्म जो है वो होल स्क्वायर है, सो वी हैव टू राइट लाइक दिस. इसको एज इट इज़ लिखेंगे, और उसके बाद है प्लस साइन प्लस 2 इंटू ए की प्लेस पे आपने ये ब्रैकेट लिख लेना है, इंटू बी की प्लेस में भी स्मॉल ब्रैकेट, और प्लस अब बी की प्लेस पे यहाँ 9 है, 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3. इसका मतलब है फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ आएगा 3, सो इट बिकम्स x प्लस वाई, यानी ये a की प्लेस पे आ जाएगा, प्लस 2ab, तो ये b की प्लेस पे है 3 होल स्क्वायर. सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 6 x plus y
plus 9 is equals to the square root of x plus y plus 3 whole square. Square and root is cancelled, so that we have plus minus x plus y plus 3. ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर. ठीक है. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सिमिलरली वी कैन सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इसी तरह से हम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी. Now student, this is the third part of the question. First of all, we have to write square root of x square y square minus 8xy plus 16. ये आपने find करना है. Therefore, we can write x square y square minus 8xy plus 16 is equals to x square y square mean कि we have to write xy whole square minus. अब चूँकि यहाँ minus है, we have to write minus 2 into first bracket then second or plus 16. 16 is the square of 4. That means कि at the place of a we have xy, at the place of b we have 4, so it becomes xy minus, यहाँ minus है, so minus 4 whole square. Therefore the square root of x square y square minus 8xy plus 16 is equals to the xy minus 4. यानी both sides square root means के plus minus xy minus 4 is the answer. नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ फर्स्ट में होल स्क्वायर है ना लास्ट टर्म, क्योंकि ये 18 है. तो इसका मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1/x प्लस 18, ये तो है हमारा फर्स्ट स्टेप. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो गिवन आपके पास है एक्सप्रेशन, इसको पहले आपने अरेंज कर लेना है कि हाउ टू गेट द स्क्वायर रूट. तो आपके पास ये देखिए यहाँ पे क्या है 18 को आप अगर 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप करें तो वी गेट 2 पार्ट्स. इसको स्टेप डाउन आप करते हैं. रूल यही है इसका कि आप इस स्टेप पीछे जाएं, यानी 18 से 1 कम कर दें तो 17 इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर. लेकिन अब जिसमें 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 16 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर. सो वी कैन राइट 18 लाइक दिस. 16 + 2 एक्चुअली 18 होता है. इसको 2 पार्ट्स में लिखा. ज़रूर एक पार्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. अब यहाँ पे 16 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन इस 2 का क्या करना है, तो इसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ 2 इसको यहाँ पे लिख लेना है, प्लस 8x प्लस 1/x, इसको एज इट इज़, और ये है प्लस 16. जैसा कि हमने कहा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला, स्क्वायर रूट मीन्स के फार्मूला ऑफ स्क्वायर. ये देखें, ये आपके पास है a स्क्वायर, दिस इज़ b स्क्वायर, और ये प्लस 2 जो है वी कैन राइट a इंटू b. ये a की प्लेस, ये b की, लेकिन जब ये कैंसिल होते हैं तो वापस आपके पास 2 आ जाता है. उसके बाद माइनस 8x प्लस 1/x प्लस 16. अब ये देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स के वी कैन राइट x प्लस 1/x एज अ होल स्क्वायर. ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा माइनस 8x प्लस 1/x प्लस 16. ये अब आपके पास होल स्क्वायर की फॉर्म में है. सो इसको यहीं से a कंसिडर कर लें, यानी आप ये कह दें कि दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ a, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -2, ये हो जाएगा a इंटू b में ये 16 है, 16 मीन्स के 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर ऑफ 4. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, तो इट बिकम्स x प्लस 1/x माइनस, ये देखें यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना है 4 होल स्क्वायर. सो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/x माइनस 4 is equals to plus minus x plus 1/x minus 4, and this is the answer. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ 5th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ आपको
1 2 3 4 ये 4 फैक्टर्स हैं बट +1 है, तो मीन्स कि ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है. फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू फैक्टराइज फॉर्म. इस तरह के क्वेश्चन आपने प्रीवियस फैक्टराइजेशन चैप्टर में कर चुके हैं. इसको बिल्कुल उसी टाइप से करने, यानी x के साथ आपने लिख लेना है x+3, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू जब सेम हो तो उनको हम एक ग्रुप में करते हैं. x+1 इंटू x+2 और ये हो जाएगा +1. अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x को तो x² + 3x, ये इसको एक सिंगल ब्रैकेट, इसी तरह से x+1 और x+2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू x² +1 एंड +2 वी गेट 3x एंड +1 इंटू +2 वी गेट 2 और ये हो जाएगा +1. अब जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये x² + 3x एंड x² + 3x सेम है, सो लेट x² + 3x इज इक्वल्स टू y. Therefore we can write, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, at the place of this x² + 3x आपने y लिखा, इसी तरह यहाँ से y +2 और +1. अब अगेन आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स y इंटू y, y² 2y +1. जैसे कि आप देख रहे हैं ये हम इसको फार्मूले के लिए अरेंज कर रहे हैं, तो दिस इज़ a² 2a इंटू b और b की प्लेस पे इस वक्त है 1, वी कैन राइट 1 विद द होल स्क्वायर. सो यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा y और ये 1, ये देखें 2 1s are 2 वापस ये आता है, तो मीन्स कि a² + 2ab + b² इज इक्वल्स टू y + 1 होल स्क्वायर, यानी ये फार्मूला हमने यूज़ किया. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट. अब अगर आप स्क्वायर रूट इसका लेते हैं या पहले y की वैल्यू पुट करते हैं, दोनों तरह से हो सकता है. तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वो क्या है हमारे पास, x² + 3x. सो एट द प्लेस ऑफ y वी हैव टू राइट x² + 3x और उसके बाद है +1, क्योंकि सिर्फ आप y की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे ये y की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर अपनी जगह पे है. सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट x² + 3x +1 whole square. So the answer is ±x² + 3x +1 and this is the answer. Students, I hope कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आप ज़रूर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. Now students, this is sixth part of the question. Here we are given, ये जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है वो x लिखा हुआ है, बट द सेकंड टर्म में लिखा हुआ है 1/x² और होल स्क्वायर. तो ज़ाहिर है अब यहाँ पे एक विदाउट स्क्वायर और एक स्क्वायर, इट मीन्स कि यहाँ कुछ मिस्टेक है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये स्क्वायर, ये जो है आपके पास ये नहीं है. द फर्स्ट टर्म इज़ x + 1/x होल स्क्वायर, ये हो गया. इसी तरह सेकेंड में आपके पास लिखा है -5 इंटू और ब्रैकेट में x - 1/x एंड होल स्क्वायर और +9/4. अब अगर फर्स्ट होल स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये सेकंड जो है ये आपके पास स्क्वायर नहीं है, तो आपने ये करेक्शन कर लेनी है, क्योंकि जिस तरह हमने पार्ट 5 में किया था, ये देखें बुक में था होल स्क्वायर, तो हमने कहा था कि ये नहीं है. इसी तरह से पार्ट 6 में भी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसकी आप करेक्शन कर लें और फिर इस करेक्शन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. यहाँ देखिए सबसे पहले आपने करेक्शन करनी है क्वेश्चन की और फिर इसको x + 1/x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है, यानी x + 1/x होल स्क्वायर -5x - 1/x और +9/4. अब x + 1/x होल स्क्वायर, जैसे कि यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, इसका मतलब ये है कि आपको पहले ये फार्मूला ओपन करना है, यानी आप क्या करेंगे, a² इसको हम लिखेंगे प्लस, यानी x² + 1/x होल स्क्वायर +2 इंटू x इंटू 1/x, ठीक है. -5 इसको फ़िलहाल ऐसा ही लिखें, क्योंकि इसकी हमें ना होल पावर है ना कुछ, इसको ओपन नहीं करना. 9/4 और यहाँ पे आपने, चूँकि ये माइनस साइन है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे +4 और -4, ये आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 कर लेना है. यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x² 1/x² और प्लस, ये देखें x और x कैंसिल तो +2 -5x - 1/x
और प्लस 9/4 +4 और ये -4। अब ये जो -4 है इसको आपने इस टर्म के साथ शिफ्ट कर देना है, यानी आपने लिखना है x² + 1/x² + 2 और -4। यहाँ पे आ जाएगा 5x - 1/x। रह गया ये 9/4 और +4, तो इनको आपने ऐसे एलसीएम लेना है, यानी इनका एलसीएम ले लेना है 4। न्यूमरेटर हो जाएगा 9 एंड 4 4s are 16, क्योंकि ये -4 हम यहाँ लिख चुके हैं। अब ये हो जाएगा आपके पास x² + 1/x², -4 एंड +2 वी गेट -2 -5 into x - 1/x and 16 + 9 वी गेट 25/4। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है a² + b² - 2ab, यानी यहाँ पे x - 1/x होल² फार्मूला आपका हो जाएगा। और ये जो है 5x - 1/x, और जहाँ तक ये है प्लस 25/4, तो 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5 और 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, सो वी कैन राइट 5/2 होल स्क्वायर। अब ये देखें, ये भी परफेक्ट स्क्वायर और ये भी, तो ये हमारे पास एक ही प्लेस पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे आना चाहिए फार्मूले का, तो 2 × a × b, ठीक है। ए की प्लेस में ये x - 1/x आ जाएगा और b की प्लेस पे क्या आ जाएगा 5/2, और ये है 5/2 होल्स। नाउ वी हैव x - 1/x, यहाँ माइनस है, -5/2 होल स्क्वायर, यानी a² - 2a × b + b², तो a - b, a की प्लेस पे ये आ जाएंगे और -b होल स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बिकॉज एक्चुअली द क्वेश्चन इज़ स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये था आपका क्वेश्चन कि ये देखें, ये इसका स्क्वायर रूट, लेकिन चूँकि हम पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे थे, नाउ वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस, square and root is cancelled, the answer is plus minus x minus 1/x minus 5/2, and this is the answer. Students, I hope कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज 7th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये भी ऐसे ही है, डायरेक्ट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये तो ठीक है a + b होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखें ये 12 है और यहाँ मिडल टर्म में भी आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो पहले आपने इनको सॉल्व करना है, यानी फर्स्ट x² + 1/x² होल स्क्वायर, तो इसी तरह से -4x + 1/x होल स्क्वायर + 12। सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट ओपन करना है बाय यूजिंग द फार्मूला a + b होल स्क्वायर। 4 को आप इसी तरह से लिखें तो ये आ जाएगा a² मीन x², 1/x होल स्क्वायर, यानी ये a², ये + b² + 2a × b, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये इसलिए कि ये ब्रैकेट है आपके पास, और यहाँ से लिख लेंगे +12, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म यानी एज इट इज़ इसको तो लिखते रहना है, -4, यहाँ पे x², 1/x² और प्लस सिर्फ आपके पास रह जाएगा 2, और ये हो जाएगा +12, यानी ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसको बस आप वैसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट अब आपके पास क्या आ जाएगा, x² + 1/x² होल स्क्वायर। 4 को आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 4x² प्लस इंटू माइनस 4/x² माइनस 4 2s are 8 + 12। इनको ये जो लाइक टर्म्स हैं, अब हम इनको एक ग्रुप में करते हैं, यानी ये तो आपके पास इसी तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ इन दोनों में -4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास क्या रह जाएगा, x² - 1/x², ठीक है, और +12 - 8 वी गेट +4। अब इसको लेके हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है x², इसको हम एक कंसिडर यानी फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लेंगे, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस, यहाँ पे फार्मूला को अगर आप देखें तो आपके पास होता है 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी a इंटू b यानी सेकेंड टर्म, और यहाँ पे आता है स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। एज वी हैव 4, सो 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, सो वी कैन राइट लाइक दिस। अब ये आपके पास a, तो एट द प्लेस ऑफ a वी हैव
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है। एट द प्लेस ऑफ b वी हैव 2। यहाँ देखिए अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर है -2 a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, तो इट बिकम्स a माइनस बी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 होल स्क्वायर। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी आप इसने रूट का सिंबल के साथ इसको लिखेंगे, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर 1/x² माइनस 2 होल स्क्वायर, सो दैट के वी हैव प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एंड माइनस 2, एंड दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने इसको मैथ्स की कॉपीज़ में ना सिर्फ बल्कि रफ कॉपीज़ में भी प्रैक्टिस किया करें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ गिवन इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अब आपके पास ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूमरेटर वी हैव 3 टर्म्स, जिनमें से फर्स्ट और लास्ट जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर वी आर आल्सो गिवन द 3 टर्म्स, बट दे आर इन, यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। यानी पहले आपने इसको फैक्टराइज कर लेना। फैक्टराइज मीन कि ये देखें, पहला है 4x⁻⁶, so we can write 2x³ होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से फर्स्ट टर्म और यहाँ से सेकंड टर्म आएगा, बट द सेकंड टर्म इज़ 3y³ होल स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी आपने इसको कंप्लीट कर लेना है, यानी ये तो हो गया न्यूमरेटर आपके पास, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या है 9x4, सो वी कैन राइट 3x² होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा a की प्लेस और ये b, और यहाँ से आ जाएगा 16 क्या है 4 का स्क्वायर, सो 4y² होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x² और यहाँ से आएगा 4y²। ये लिखने के बाद अगर आप चेक करें ना तो ये आपके पास 12 भी आता है। ये देखें 3 2s are 6, 6 2s are 12। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर 4 3s are 12 एंड 12 2 is 24। तो ये आपने फार्मूला के लिए अरेंज किया था, सो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 2x³ प्लस 3y² होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 3x² प्लस 4y² होल स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म यही है। सो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये देखें ये आपके पास ये न्यूमरेटर है, ये हमारे पास है डिनोमिनेटर, एंड दोनों का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। दस द आंसर इज़ प्लस माइनस 2x³ प्लस 3y³ and 3x² plus 4y², and this is the आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन सारे पार्ट्स की आपने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स।